دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 10 پیشکش میرے کارواں۔ ربی موشی ہیمن ساحل والے کوچ کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ چند لمحے بعد وہ بڑی انہماک سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ اس کے عمل نے مجھے بتا دیا وہ اپنی گوئی کارگزاری چیک کرنے آیا تھا۔ ساحل کی حالت اور پوزیشن چین چین کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ اسے تنویمی عمل سے گزارا گیا تھا، وہ ہپنوٹک نیند میں تھی۔ میں اس بیڈ روم کو دیکھ کر قطعاً یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کمرہ کسی عمارت میں اور وہ عمارت کسی شہر کسی ملک میں واقع ہے۔ اگر میرے تصور کی نگاہ کو اس بیڈ روم سے باہر نکلنے کا موقع مل جاتا تو میری مرد برابر سکتی تھی۔ میں نے ربی موشی ہیمن کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ اگر وہ بیڈ روم سے نکلتا تو میں ساحل کو ٹریس اور ٹریک کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ 1 منٹ کے تنقیدی جائزے کے بعد ربی مڑا اور ایک سخت قدموں سے دروازے کی سمت بڑھا۔ میرے تصور کی آنکھ گویا اس کی پشت پر چیک کر رہی تھی۔ وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ کر رکا، مڑ کر ساحل پر ایک بار پور نگاہ ڈالی اور جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا سب کچھ درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ راکیل کی تیز آواز نے میرے تصور پاش پاش کر دیا۔ میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ آواز دینے کے ساتھ ہی کندھے سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ بھی رہی تھی۔ اس کے یہ الفاظ میری سماعت تک پہنچے۔ وجدان، کیا تم بیٹھے بیٹھے سو گئی ہو؟ کھڑکی سے باہر دیکھو، اس جزیرے کی صبح کتنی سہانی ہے۔ جہنم میں گیا یہ جزیرہ اور اس کی صبح، میں خاصی اونچی آواز میں چلایا۔ راکیل کھڑکی سے ہٹ گئی اور میرے سامنے آ کر حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے وجدان؟ اس قدر مرہم کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم چند منٹ صبر کر لیتی تو کوئی قیامت آ جاتی؟ میں نے بدستور خفگی امیز انداز میں کہا۔ کیا اس جزیرے کی صبح کہیں بھاگی جا رہی تھی؟ راکیل کی بے حد مداخلت نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ میری برہمی اور ناراضگی اپنی جگہ درست تھی، لیکن جب میں نے حقیقت پسندی سے سوچا تو وہ مجھے بے قصور نظر آئی۔ اس بے چارے کو کیا معلوم تھا کہ میں اس وقت کتنے اہم کام میں مصروف تھا۔ وہ یہی سمجھی ہوگی اس میں آنکھیں بند کیے آرام چیئر پر ریلیکس ہو بیٹھا ہوں۔ راکیل کی ایسی ہی ایک فطری حرکت نے طیارے کے اندر بھی میرے تصور کو کھانا خراب کر دیا تھا۔ وہ بڑی گہری نظر سے مجھے میرے چہرے کو جائزہ لیتے ہوئے بولی، تمہارے حال ٹھیک نہیں نظر آ رہی وجدان، کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں، میں اس وقت تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ نارمل انداز میں کہا، دراصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم مجھے غصے میں دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کرتی ہو۔ پھر دیکھ لیا؟ وہ بے یقینی سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کرسی چھوڑتے ہوئے کہا، تم بڑی برداشت والی لڑکی ہو۔ اس کی نگاہ میں میری وضاحت کے لیے بے اعتباری موجود رہی۔ شاکی لہجے میں بولی، میں سمجھ رہی ہوں تم مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم خود ہی نہیں بتانا چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں گی۔ وہ وقتی پسپائی کا مظاہرہ کر کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دے رہی تھی۔ میں نے موضوع کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا، کیا ڈاکٹر مونگ ابھی تک واپس نہیں آیا؟ اس سے پہلے کہ راکیل میرے سوال کا جواب میں کچھ کہتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور متضررہ بلا شخص اندر داخل ہوا۔ ہم دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر مونگ سے پوچھا، تم تو ذرا سے ٹہل قدمی کرنے گئے تھے، پورے 3 گھنٹے بعد لوٹے ہو، خیریت تو تھی؟ بات ختم کرتے ہی میں نے دیوار کلاک کی جانب اشارہ کیا۔ کلاک کی سوئیاں 8 بجے کا وقت بتا رہی تھیں۔ ڈاکٹر مونگ ایک کرسی سنبھالنے کے بعد بولا، فکر مندی والی کوئی بات نہیں۔ میری چہل قدمی تھوڑی دراز ہو گئی تو میں نے سوچا کچھ اپنا بندوبست بھی کر لیا جائے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہو کر پھر سنجیدگی سے بولا، راکیل کی تجویز مجھے بھری چنگی لگی، پھر ہمیں پہلی ہی فرصت میں یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میں نے اپنی روپوشی کا بڑا معقول انتظام کر لیا ہے، تم دونوں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، کچھ معلوم ہو تو کیا ایسا انتظام کر کے آئے ہو؟ یہاں سے نکلنے کے بعد میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا، وہ رسانیت سے بولا۔ ابھی تک ہوٹل میں زیادہ چہل قدمی نہیں ہوئی، یہ ہمارے فرائیڈ کے لیے اچھا موقع ہے، ہم کسی کی نگاہ میں آئے بغیر رفو چکر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک 9 بجے ہمیں ہانگ چو کی لانچ میں پہنچنا ہے۔ ہانگ چو؟ میں نے حیرت بھری نظر سے ڈاکٹر مونگ کو دیکھا۔ وہ بولا، کہا ہے نا یہاں سے نکلو، پھر تفصیل بتاتا ہوں۔ 10 منٹ کے اندر اندر ایک ایک کر کے ہوٹل چھوڑنا ہوگا تاکہ کسی کو ہمارے فرار کا فوری طور پر احساس نہ ہو۔ میں پہلے جا رہا ہوں۔ ہوٹل سے باہر دائیں جانب 100 گز کے فاصلے پر ایک نیوز اسٹینڈ ہے، تم بھی یکے دگرے بعد وہاں پہنچ جانا اور ہوٹل چھوڑنے سے قبل ذرا اپنے ہولیوں کی ٹچنگ ضرور کر لینا۔ ڈاکٹر مونگ اس وقت راکیل کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ ابھی سو کر اٹھی تھی، اس کا حلیہ قدرے منتشر ہو رہا تھا۔ میں نے فریش اپ ہوتے ہی اپنے کنٹینیوٹی کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ قسیم جوہر نے کراچی میں مجھے میک اپ کے جو اثر موز سکھائے اور بتائے تھے وہ قدم قدم پر کام آ رہے تھے۔ نسیم جو ہر وقت
वाकई बहुत जवाहिर का मालिक था। डॉक्टर मोंग बातें खत्म करके कमरे से बाहर निकल आया। इस दौरान मैं राकेल वॉशरूम में घुस चुकी थी। देनाली के हॉर्पर राज होटल में टेलीफोन की गुफ्तगू में डॉक्टर मोंग ने राकेल की ब्यूटिशियन महारत के बारे में मुझे तफसीलन आगाह किया था। ठीक 10 बजे बाद हम दोनों मज़कूरा न्यूज स्टैंड पर डॉक्टर मोंग के पास पहुंच गए। डॉक्टर मोंग ने एक टैक्सी रोकी और हम इसके अंदर बैठ गए। डॉक्टर मोंग पैसेंजर सीट पर था, जबकि राकेल मेरे साथ टैक्सी की अकबर नशिस्त पर बाजमान थी। इस मुख्तसर से सफर के दौरान मैं टैक्सी का कामरा खामोशी छाई रही। डॉक्टर मोंग ने कुछ कहा और ना ही हम में से किसी ने एक लफ्ज बोल कर दिया। मेरे जहन में डॉक्टर मोंग के मंसूबे के हवाले से अथल पचल मच रही थी। पता नहीं इस खुदा के बंदे ने किस किस्म का प्लान बनाया था, और ये होंगचो को कौन था, ये जिसकी लॉन्च वो हमें सवार कराना चाहता था। 15 मिनट बाद हमारा ये सफर एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने जाकर खत्म हुआ। डॉक्टर मोंग ने टैक्सी वाले को फारिग किया और हमें अपने साथ रेस्टोरेंट के अंदर आने को कहा। हम बिला चौन चौरासा इसकी तकलीद में आगे बढ़ गए। रेस्टोरेंट में ज्यादा रश नहीं था, बल्कि रश बिल्कुल भी नहीं था। हमारे अलावा सिर्फ 2 मेजें आबाद थी और वो खासे फासले पर। डॉक्टर मोंग ने वेटर की आमद पर मुख्तसर से नाश्ते का ऑर्डर दिया, फिर हमारी जानिब मतवज्जो हो गया। वो इस वक्त हम दोनों के से बैक वक्त मुखातिब था। इंसान की जुबान की इस दुनिया में बड़ी अहमियत है। अपना हम जुबान आपको जहाँ भी मिल जाए, आप इसके लिए अपने दिल और मालूमात में गुंजाइश निकाल ही लेते हैं। मैं मंडरन जुबान बड़े तरीके सलीके से बोलता और समझता हूँ। हांगचू एक चीनी है, इसका ताल्लुक चीन के इलाके शंघाई से है। मैंने मुख्तसर से वक्फे में हांगचू से अच्छी खासी राह रस्म बना ली है। मुझे मंडरन बोलते देखकर वो खुशी से फूल गया। जजीरा जोनारा में अकाउंट का चीनी भी आबाद है। हांगचू बुनियादी तौर पर एक माही गिर है। आज 9 बजे इसकी लॉन्च समंदर में रवां होगी, फिर शाम से कुछ पहले ही वो वापस लौटेगा। हम आज का दिन इसके साथ लॉन्च पर गुजारेंगे। वो एक लम्हे को सांस लेने के बाद रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, इस दौरान में दोनों परवाजें अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाएंगी। रात को वापस आकर सोचेंगे आइंदा क्या करना है। ब्रूस नूल्स और दिगर हम अफराद से पीछे छुड़ाने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं मिलेगा। तुम ये समझ लो, मैंने अपने हथकंडों से होंगचू को गहरा दोस्त बना लिया है। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली और मुतफिरिक लहजे में कहा, 8:30 बज तो रहे हैं और तुमने बताया है ठीक 9 बजे हमें होंगचू की लॉन्च पर सवार होना है। ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? अभी तो हमने नाश्ता शुरू किया है, सब हो जाएगा। वो बड़े मुतमईन अंदाज में बोला। इस रेस्टोरेंट से सिर्फ 3 मिनट में पैदल चलते हुए हम हांगचू की लॉन्च तक पहुंच जाएंगे। वो जगह यहाँ से दूर नहीं। आइडिया उम्दा है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। राकेल ने फखरिया नजर से हारी बारी बारी हम दोनों को देखा, लेकिन जुबान से कुछ ना बोली। इसकी निगाह का फकर बजा था, परिश्मा ये इसकी बुझाई हुई राह थी। डॉक्टर मोंग ने खाने पीने की अशिया पर तेजी से हाथ चलाते हुए कहा, तुम लोग जल्दी से फारिग हो जाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। राकेल सबसे पहले फारिग हुई और मेज छोड़कर वॉश बेसिन की जानिब बढ़ गई। डॉक्टर मोंग तेजी से मेरी जानिब मुड़ा और सरगोशियाना अंदाज में बोला, डिसलवा, मैं तुमसे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ। कोई सवाल ना करना कि वक्त बहुत कलील है। मैं गाशिया को इस गुफ्तगू में शामिल नहीं करना चाहता। इसका राजदाराना और पुर असरार अंदाज देखकर मैं चौंक उठा, फिर इसकी जानिब मतवज्जो हो गया। राकेल एक तरह से इसकी मातहत थी। अगर वो इसके सामने बात नहीं करना चाहता था तो इसका मतलब यही था वो बात टॉप सीक्रेट हो गई। डॉक्टर मोंग ने अपने नपे तले में अल्फाज बताए, मैंने होंगचू को शीशे में उतारने के अलावा भी एक अहम काम किया है। सेटल में अपने बड़ों से रब्ता करना जरूरी था। मैंने इन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। तैयारी का अगवा इनके इल्म में आ चुका है। वो लोग भी इस बात के हक में नहीं कि गवर्नमेंट से मुतल्लिक अफराद हमें साथ नथी कर सेटल ले पहुंच जाए। ब्रूस नोल्स वगैरह से सेटल में जान छुड़वाना मुमकिन नहीं होगा, लिहाजा हमें पहली फुर्सत में इलास्का की हाई अथॉरिटी से अलग हो जाना चाहिए। वो इसके लिए मुझे एक मंसूबा भी दिया गया है। वो एक लम्हे को खामोश हुआ तो मैंने सवाले नजरों से इसे देखा। इसके बरों के किसी मंसूबे का सुनकर मैं उलझ गया था। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मेरे बरों का हुक्म है कि हम इस काफले से स्लिप हो जाएं और हालात व वाक़यात में से एक मुनासिब मौका निकालकर जापान पहुंचने की कोशिश करें। जापान? मैं तकरीबन उछलकर रह गया, ताहम आवाज पर कंट्रोल रखा। वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, इस वक्त हम 155 डिग्री वेस्ट यानी तौल अलबल्द पर हैं। 180 डिग्री पर इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगर हम मज़कूरा लाइन को कबूल कर ले तो जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक इंटरनेशनल डेट लाइन जोनारा आइलैंड और टोक्यो के वस्त में वाक़या है। मैंने होंगचू को ऐसा सेट कर दिया है कि वो हमारे टोक्यो तक जाने के लिए कोई भी माकूल या नामाकूल यानी कानूनी या गैर कानूनी बंदोबस्त कर देगा। फिर टोक्यो से ताइपी और ताइपी से नेपाल तक पहुंचना हमारे लिए चिंता मुश्किल नहीं होगा। मुझे सेटल की तरफ जाने से मना कर दिया गया है और टोक्यो में एक ऐसे बंदे से मिलने को कहा गया है जो हमारे लिए आगे के सफर का इंतजाम करेगा। डॉक्टर मोंग की बातें इंकिशाफ इंगेज थी। हमारे प्रोग्राम में ये अचानक तब्दीली कैसी सनसनीखेज और महमाती थी, लेकिन मेरा ज़हन इस वक्त साहिल के बारे में सोच रहा था। मैंने अभी तक डॉक्टर मोंग को सुबह वाले तजुर्बे के बारे में नहीं बताया था और मैं अभी तक इसी सोच में पड़ा हुआ था। बड़े ड्रामाई अंदाज में बोला, धन
साहिल के हवाले से तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या? मैंने इस तरारी लहजे में इस्तफसार किया। इससे पहले कि डॉक्टर मोंग मेरे सवाल का जवाब देता, राकेल वापस आती हुई दिखाई दी। डॉक्टर मोंग मखसूस अंदाज में खननाते हुए सीधा हो गया। हमारी बात अधूरी रह गई। अधूरा इल्म हो या कोई बयान बड़ा तहलका डालता है। डॉक्टर मोंग ने मेरे नाजुक पहलू को छूकर मेरे अंदर खलबली मचा दी थी। पता नहीं वो साहिल के हवाले से मुझे कौन सी खुशखबरी वाला था। वो वाज़े तौर पर बता चुका था कि इस मौजू को राकेल के सामने डिस्कस नहीं करेगा, लिहाजा मुझे इस वक्त तक इंतजार करना था जब तन्हाई में इससे बात करने का मौका मिले। इंतजार के ये लम्हात मेरे लिए क़यामत ख़ेज़ और वहशत अंगेज थे। नाश्ता खत्म हो चुका था। डॉक्टर मोंग ने बिल अदा किया और हम रेस्टोरेंट से निकल आए। फिर वाकई ठीक 9 बजे हम होंगचू की लॉन्च पर सवार हो रहे थे। होंगचू की लॉन्च बड़ी शानदार और जदीद सहूलियात थी। रेडियो और स्पीड मीटर के अलावा इस फिजाई में दबाव, दुरुस्त समय, वक्त, दर्जा हरारत और आबी तगैर तबद्दुल के बारे में बताने के लिए हसास आलात नस्ब थे। होंगचू इस लॉन्च को चौके निशिंग माहीगिरी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए इसको अंदर कोल्ड स्टोरेज भी मौजूद था जहां पकड़ी जाने वाले मछलियों को महफूज किया जाता था। होंगचू की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। इसकी वाज़ेह कते और हुलिया आम चीनियों जैसा था। इस सर पर इसने मखसूस चीनी टोपी लगा रखी थी। होंगचू के अलावा इस लॉन्च में 2 और अफराद मौजूद थे, 15 साला योंगली और 35 साला चीफोन। ये दोनों फिशिंग वगैरह में होंगचू की मदद करते थे। योंगली और चीफोन की हैसियत होंगचू के मुलाजमिन की सी थी। इस लॉन्च में दीगर जरूरियात के साथ साथ 8-10 अफराद के खाने पीने का भी बंदोबस्त था। होंगचू ने अपने मुलाजमिन से हमारा तारुफ मेहमानों के तौर पर कराया था, जिन्हें वो सैर तफरीह की गर्ज से खुले समंदर में ले आया था। होंगचू के अंदाज मुझे बता दिया कि डॉक्टर मोंग के मुतासिर कुछ शख्सियात ने यहाँ भी बहुत काम दिखाया है। हम खुले समंदर में एक खास रफ्तार से आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद जुनारा आइलैंड के आसार मादूम हो गए। अब हमारे चारों तरफ ताहत निगाह पानी ही पानी था। होंगचू के मुताबिक अभी हम समंदर के इस हिस्से में नहीं पहुंचे थे जो मछली पकड़ने के लिए मौजू तरीन था। अचानक राकेल को इंजन रूम और लॉन्च के मुख्तलिफ हिस्सों देखने का शौक उठा। होंगचू इसे अपने साथ ले गया। मैंने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की और जरा सी तन्हाई मैसर आते ही मैंने डॉक्टर मोंग से इस्तफसार किया, तुम मुझे साहिल के बारे में कुछ बताने वाले थे। इसने इस बात में सर हिलाया और गहरी संजीदगी से बोला, मुझे अपने बड़ों से पता चला कि तुम्हारे साहिल साथी को हैम्पटन न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। वो इस वक्त सख्त पहरे और हिफाजत में है। बहरहाल वो एक लम्हे को रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरे बड़े इस तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा हमें जल्द कामयाबी देगा। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, मेरे साथी इधर मैनहट्टन में है और तुम मुझे अपने साथ जापान ले जाना चाहते हो? ये कैसे मुंतिक है डॉक्टर मोंग? मेरी जिंदगी की ये जंग तो साहिल के हसूल के लिए है। तुम मुझे मुहाज से खड़ेर बैरक में धकेलना चाहते हो। मैं तुम्हारे बरों को इस मंसूबे को समझ नहीं पाया हूँ। इसने बड़ी तसल्ली से मेरी बात सुनी और ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद से नहीं हटा रहा, बल्कि एक छोटे से बड़े महाज पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जापान हमारी मंजिल नहीं। मैंने तुम्हें बताया है ना, हम टोक्यो से ताइपी और ताइपे से नेपाल पहुंचेंगे, जहां बुद्ध नीलकुंड की इबादतगाह में यहूदियों से हमारा असल मोर्चा होगा। और साहिल? मैंने उलझन भरी नजर से इसे देखा। वो नॉर्मल होते हुए बोला, साहिल को बहुत जल्द यहूदियों के चुंगल से निकाल लिया जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, वो सेटल में महफूज रहेगी। डॉक्टर मोंग की वजाहत सुनकर मैं तिल मिला उठा। वो वाज़ेह तौर पर मुझे साहिल से अलग करने की प्लानिंग कर रहा था। इसका अंदाज बहुत मुबहिम और काबिल गौर था। इन लम्हात में वो मुझे एक साजिशी साला नजर आया। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं इसे अपने सुबह वाले तजुर्बे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बड़ी अच्छी तरह ये जान चुका था कि मेरी साहिल इस वक्त रब्बी मोशे हैमन के कब्जे में थी। अब डॉक्टर मोंग ने यह भी बता दिया कि वो न्यूयॉर्क के इलाके बैडमिंटन में है। अगर मैं किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंच जाता तो फिर साहिल तक रसाई हासिल करना मेरे लिए मुश्किल न रहता। मैंने अपने ताज़ा तरीन ख्यालात को डॉक्टर मोंग पर जाहिर ना किया और इसे घिसते हुए पूछा, तुम जितने शिद्दत शर्म से मुझे नेपाल लेकर जाना चाहते हो, इससे तो यही जाहिर होता है रब्बी मोशे हैमन ने साहिल के अंदर से वो राज निकाल लिया है जो खुफिया तहखाने को पहुंचा सकता है। और रब्बी रोबी के अशारे पर ताकतवर यहूदियों की एक मुंजिम टीम किसी भी वक्त बुद्ध नीलकुंड की इबादतगाह पर धारा बोलने लगेगी। पहली बात तो ये कि तुम्हारे अपने साथ नेपाल ले जाने वाला मेरा नहीं बल्कि मेरे बड़ों का फैसला है। वो बड़े रसान से बोला, और जहाँ तक साहिल के अंदर से कोई राज उगलवाने की बात है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। रब्बी अपनी कोशिश में कामयाब हो या ना हो, बहरहाल वो लोग बुद्ध नील के उनकी इबादतगाह को टारगेट तो बना चुके हैं। वो किसी भी वक्त इस पर चढ़ाई कर सकते हैं। मेरे बड़ों ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला किया है।
गुफ्तगू के एक दौरान वो अपने बंदा बार बार अपने बरों को लेकर आता था और इस आड़ में इसे फरार का मौका मिल जाता था। इसके बरों के जिक्र से मुझे चिड़सी होने लगती थी। सारी दुनिया भी खेरे रहे, एक तरफ मुझे सबसे पहले अपने साहिल से मतलब था। सच्ची और ईमानदारी की बात यह है कि मैं डॉक्टर मोंग और इसके बरों का साथ देने के लिए महज इसके लिए तैयार हो गया था कि साहिल इनके कब्जे में थी। इन लोगों के लिए एक आर्मी का को साहिल के माउंट मैकिनले से निकालकर बाहिफाजत फेयर बैंक पहुंचा दिया था, लेकिन जब से दोबारा रब्बी के आदमियों ने फेयर बैंक इसे उड़ा लिया था, मैं एक अजीब से मुखमसे में था। डॉक्टर मोंग का साथ देने के सिवा मुझे कोई चारा दिखाई नहीं देता था। अब इन सूरत हालात खासी बदल गई थी। मैं साहिल का सुराग पाने में कामयाब हो गया था, लिहाजा मेरी हर मजबूरी और बेबसी कटकर रह गई थी। मैंने अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए डॉक्टर मोंग से पूछा, क्या तुम्हारे बरों ने ये मालूम कर लिया कि साहिल मैनहट्टन में किस शख्स के कब्जे में है? नहीं, ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी, इसने जवाब दिया, मगर बहुत जल्द मेरे बरे इसका खोज लगा लेंगे। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कर्ज जारी रखी, डॉक्टर मोंग, अगर तुम बुरा ना मानो, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारे बरों को ये कैसे मालूम हुआ कि मेरी साहिल को रियासत अलास्का के शहर फेयरबैंक्स से अगवा करके न्यूयॉर्क के पोश इलाके मैनहट्टन में पहुंचा दिया गया है। मैंने जरा तौक़ुफ़ के बाद इजाफा करते हुए कहा, वो लोग ये जानने में अभी तक नाकाम क्यों है कि साहिल की लोकेशन क्या है और वो किस दुश्मन के कब्जे में है? मैंने हाथ ही चुपते हुए और अहम सवालात किए थे। वो चंद लम्हात गहरी संजीदगी से मुझे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम्हारे अंदर तो जासूस का मादा कूट कूट कर भरा हुआ है, और जब तक किसी मामले में तुम्हारी तसल्ली नहीं हो जाती, तुम्हारी रूह को सुकून नहीं मिलता। लेकिन रकेल का तो मेरे बारे में ये ख्याल है कि मैं बहुत बेपरवाह हूँ। रकेल को फिलहाल इस अहम गुफ्तगू से दूर ही रखो। ठीक है, मैंने अपने सर को मखसूस अंदाज में हिलाया और कहा, क्या मुझ जैसे मिजाज का हामिल होना कोई बुरी बात है? मैं इस दौरान में मुसलसल डॉक्टर मोंग की आंखों में देख रहा था। जब से मुझे एहसास हुआ था कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मैं इसके और इसके बरों की तरफ से बेहद मुहतात हो गया था। ये हालात का तकाजा था और वक्त की जरूरत भी। वो बोला, इस आदत को बुरा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके सबब मामलात में बिगाड़ और हालात में खराबी उलझन पैदा हो सकती है, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है? मैंने हैरत से पलकें झपकाई। वो ठोस लहजे में बोला, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें मेरे कहने का एतबार नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तरदीद करते हुए कहा। बहरहाल वो बहस से बहरुतही करते हुए बोला, किसी चीज़ का जाना या ना जाना सलाहियत पर मुनहसिर है। हर इंसान की अपनी एक शक्ति और कोई शक्ति, कोई कुव्वत और कोई सलाहियत भी मुकम्मल नहीं होती। हर जगह हदूद और क़यूद का निज़ाम लागू है। वो एक लम्हे को रुका, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरे बरों ने जहाँ तक मालूम किया और जो फिलहाल मालूम नहीं कर सके, इसके दरमियान एक बफर जोन है, और ये ज़रूर नहीं कि वो कभी भी इसके आगे मालूम नहीं कर सकेंगे। कोशिश जारी है, रुकावट हटा दी जाएगी। अगर ये मुमकिन ना हो सका तो कोशिश का दूसरा और तीसरा जाविया आजमाया जाएगा। पुरअसरार अलूम में इन दावबेच और ऊंच नीच का सामान लाजमी है। मैंने फिजिक्स का शोबा बड़ा अजीबो गरीब है। मेटाफिजिक्स, मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। हाँ, मेटाफिजिक्स, वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला, जिस अमल को सादा अल्फाज में ध्यान ज्ञान कहा जाता है, साइंस तहकीक इसे मेडिटेशन और मेटाफिजिक्स के खाने में फिट करती है। इसके बाद डॉक्टर मोंग ने मुझे मेटाफिजिक्स पर एक मुख्तसर सा लेक्चर दे डाला। इसके साथ ही इसने मेरी ची की सलाहियत की मिसाल भी दी, जो रफ्ता रफ्ता अपने सामने हायल हदूद और रुकावटों को तोड़ने वाले अपने दायरे का वसीह करती चली गई। इसकी बातें पुरमायनी और बुनवन सच नजर आ रही थी, लेकिन ये मैं महसूस किए बगैर नहीं रह सका कि वो महज मेरी तवज्जो हटाने के लिए ऐसी आलमाना मशगूफियाँ कर रहा था। फौरी तौर पर मेरी समझ में यही आया कि इसके बड़े साहिल का सुराग पा चुके हैं और वो ये नहीं चाहते कि इनके मिशन को छोड़ छाड़ कर साहिल के पीछे दौड़ पड़ूं। इसलिए रब्बी वाली हकीकत को मुझसे मुख्फी रखा जा रहा था। वो लोग जो कुछ मुझसे छुपा रहे थे, मैं इस तक रसाई हासिल कर चुका था, लिहाजा इनके लिए इस्तेमाल होने का मुझे कोई शौक नहीं था। मेरे लिए दुनिया भर के खजाने साहिल के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं रखते थे। चुनांचे मैंने डॉक्टर मोंग से दो टोक अंदाज में कहा, देखो डॉक्टर, तुमने मुझसे दोस्ती की है और मैं एक दोस्त होने के नाते तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। वह सवाल नजर से मुझे तकने लगा। मैंने गमगीन अंदाज में कहा, बुधनील कुंड की इबादतगाह में कौन कौन से अनमोल खजाने पोशीदा हैं? मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सीधा यहाँ से न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ। मेरे बरों का ख्याल है बुधनील कुंड की इबादतगाह पर होने वाले यहूदियों की यलगार को सिर्फ और सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। वो गहरी संजीदगी से बोला, इसलिए हमने अपने मिशन में तुम्हें हर कदम पर साथ रखा है। तुम हरगिज़ चंद रोज के वाकयात पर निगाह डालो। वो एक लम्हे के मुतवक्फ हुआ, फिर समझाने वाले अंदाज में बोला, अगर हम चाहते तो रबी मोशे हमन के माउंट मैकिनले वाले पनाहगाह से सिर्फ साहिल को निकाल लाते और यह हमारे लिए कदरे आसान होता, जिसके नतीजे में मैं तुम्हें अपने साथ नेपाल जाने वाला हूँ।
मैं नेपाल नहीं, न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ। मेरे लहजे में कतियत थी। वो जल्दी से बोला, बुंदेलखंड वाली बदगाह से मुतल्लिक मिशन में तुम्हारी जो अहमियत है वो तो मैं तुम पर वाज़िया कर चुका हूँ। और इसके बाद मुकम्मल होने से पहले ही मैं मुनफिसिर हुआ। डॉक्टर मोंग, तुम बुद्धा के पैरोकार हो ना? इसने मुतज़ब्बाब नजर से मुझे देखा और इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे लॉर्ड बुद्धा से भी ऊंची चीज समझते हो? कतई नहीं। वो इस तरह अंदाज में पहलू बदल कर रह गया। फिर तुम हौसला रखो और हर फिक्र अंदेशों को ज़हन से झटक दो। मैंने ठोस लहजे में कहा। साहिल के बाप थोंची ने मुझे बताया था कि जब भी इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की गई, इंसानी खून की नदियां सी बह गईं। इस खजाने के तलबगार रुकते ही मिले मौत मारे गए। आज तक कोई शख्स इस खजाने तक रसाई हासिल नहीं कर सका, क्योंकि हर दौर का दलाई लामा इस पेशे कीमत खजाने का निगरान होता है। मेरे ख्याल में दलाई लामा और लॉर्ड बुद्धा इन मामलात को बखूबी संभालेंगे। मेरी शमूलियत या गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो गहरी संजीदगी से बोला, लॉर्ड बुद्धा और मोहतरम दलाई लामा तुम जैसे हरफन मोल्ला लोगों से ही काम लेते हैं और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मैंने अटल लहजे में कहा, डॉक्टर मोंग, मैं सिर्फ एक ही सूरत में तुम लोगों का साथ दे सकता हूँ कि मैं बुद्ध नील वाले मिशन में साहिल भी मेरे साथ हो। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने इजाफा करते हुए कहा, तुम्हारे बड़ों की अप्रोच के सामने तो एक बगैर जोन ऑन खड़ा हुआ है। अब मैं ही न्यूयॉर्क पहुँच कर कोशिश करता हूँ। मैं जानता था मेरे ये सख्त अल्फाज डॉक्टर मोंग को बहुत चुभे होंगे। इन लम्हात में मैंने खास तलक हो गया था, लेकिन इसने मेरे चेहरे के तासरात से किसी किस्म की नागवारी जाहिर ना होने दी। चंद लम्हात तक बड़ी खोजती हुई नजर से मुझे देखता रहा, फिर एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला, ठीक है, हम जुनारा पहुंचकर इस मौजू पर बात करेंगे। मैंने इस मौका पर इसे इसका वादा याद दिलाना जरूरी समझा और कहा, डॉक्टर मोंग, तुमने मुझे बताया था तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें ताकीद कर रखी है, मुझ पर कोई दबाव ना डाला जाए। मैं जब और जहाँ जाना चाहूँ मेरे लिए रास्ता खुला छोड़ दिया जाएगा। मुझे ये वादा याद है। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने इरादे से आगाह कर चुका हूँ। मुझे हर सूरत में न्यूयॉर्क पहुँचना है। तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा ना, वापस जुनारा पहुँचने के बाद इस मामले पर बात करेंगे। मैंने क्रीद और इस्तफसार का मुसलसल मौकूफ कर दिया। डॉक्टर मोंग रिफोशी जुनारा पहुंचने के बाद यकीनन अपने बड़ों से राब्ता करके नई हिदायत लेना चाहता था। दोपहर का खाना हम सब ने एक साथ बैठकर खाया। होंगचू अपने मददगारों के ताउन से माहीगीरी में मसरूफ रहा। ये काम 2 मरहलों में किया गया। पहला मरहला क्रिंज से पहले का था और दूसरा लंच के बाद। होंगचू ने हमें बताया कि खाने के बाद वो सिर्फ 1 घंटे तक फिशिंग करेंगे, फिर वापसी की राह ली जाएगी ताकि सूरज गुरूब होने से पहले जुनारा आइलैंड पर पहुंच जाए। दूसरा मरहला आगाज हुए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक सनसनीखेज वाक़या पेश आ गया। इस वक्त के 2 बजे थे। हमें अपने अक़ब में जुनारा आइलैंड की जानिब एक लॉन्च के आसार नजर आए। वो लॉन्च बड़ी तेज रफ्तारी से हमारी सिमत चली आ रही थी। इसकी रफ्तार को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता था वो 10 से ज्यादा 10 मिनट में हमारे सर पर होगी। होंगचू बड़ा तजुर्बाकार माहीगीर था। इसकी पूरी जिंदगी इसी समंदर में माहीगीरी करते गुजारी थी। इस लॉन्च के तेवर देखकर इसका माथा ठटका और इसने तशवीशनाक लहजे में डॉक्टर मोंग से कहा, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? डॉक्टर मोंग ने बजाय में पूछा। वो बदस्तूर इस लॉन्च पर निगाह जमाकर बोला, फिलहाल मैं वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तय है वो लोग हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। अब हम तीनों भी तशवीश में मुब्तला हो गए। इनका आगे बढ़ने का अंदाजा तो यही बता रहा था। वो दोस्त हरगिज नहीं हो सकते। अगर वो दुश्मन थे तो किसके, होंगचू के या हमारे? ये बड़े फिक्र अंगेज सवालात थे। इस दौरान मैं होंगचू ने इधर उधर घूमकर फिर एक रिवॉल्वर बरामद कर लिया और बड़ी अजरत में बोला, मैं अपनी हिफाजत के ख्याल से इसे अपने साथ रखता हूँ। मेरा ख्याल है हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसने बड़े माहिराना अंदाज में रिवॉल्वर को जेब में ठूंसा और हमारी जानिब देखते हुए फिक्रमंदी से बोला, तुम तीनों थोड़ी देर के लिए खुद को रिपोश कर लो। अगर खैर गुजरी तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। फिर हमारा जवाब सुने बगैर इसने हमें पीछे जाने का इशारा किया और लॉन्च के एक ढके हुए हिस्से की जानिब बढ़ गया और एक इसके हिस्से में पनाह लेते तो दूसरी लॉन्च वाले हमें देख नहीं सकते थे। हमें महफूज करने के बाद होंगचू ने नासिहाना अंदाज में कहा, जब तक मैं आवाज देकर नाम बुलाऊं तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं आओगे। मैं जाकर देखता हूँ वो लोग कौन है और क्या इरादा बांध कर इधर आए हैं। हमने इस्बाती जंबशों से इसे यकीन दिलाया कि इसकी हिदायत पर सख्ती से अमल करेंगे। होंगचू ने इस मौका पर डॉक्टर मोंग को मुखातिब करते हुए मैंड्रिन में कलाम किया था। मैं एक तवील अरसा गुजारा था जहाँ का हर दूसरा बाशिंदा मैंड्रिन बोलता है। अब वो लॉन्च हमारी लॉन्च के इंतहाई करीब पहुँच गई थी। इस कुर्बत का अंदाजा हमें इसके इंजन के शोर और समुद्री मौजों के तमुज से हुआ। वो यकीनी तौर पर हमारी लॉन्च से काफी बड़ी थी। हमारे माहौल में इस कदर शोर मौजूद था कि अगर हम ये आवाज़ बुलंद भी गुफ्तगू करते तो हमारी आवाज़ें इस खुफिया पनाह से बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने डॉक्टर से कहा, मोंग रिफोशे, अगर वो लोग दुश्मन हैं तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि होंगचू की भरपूर मदद करें। इस बुरे चीनी ने मेजबाई का हक अदा किया और हमारे दिल जीत लिए हैं।
सूरत-ए-हाल वाज़ह हो जाने दो, डॉक्टर मोंग ने सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। अगर वो लोग वाकई दुश्मनी करने आए हैं तो इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। हम हांगचू को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस शरीफ इंसान ने हम पर बड़ा एहसान किया है। डॉक्टर मोंग के लहजे से चिट्टानी अज़म झलकता था। इस दौरान में मज़कूरा लॉन्च हमारी लॉन्च के करीब आकर ठहर गई थी। इनके ठहराव से ये तो साबित हो गया कि वो लोग हम से दोस्ती या दुश्मनी निभाने आए थे। हांगचू और दूसरी लॉन्च वालों के दरमियान क्या मुज़ाकरात हो रहे थे, इसकी हमें खबर नहीं थी। हमने बाहर की सूरत हाल जानने के लिए अपने सिमतों को शोर से निबर अजमा कर दिया। 2 मिनट बाद हमें चौंक जाना पड़ा। हमने वाज़ेह तौर पर महसूस किया चंद अफराद हमारी लॉन्च पर कूदे थे। अगर हम अपनी तवज्जो किसी खास नुक्ते पर मजबूर कर दी जाए तो इंसान के हवास खुमसा में हैरत अंगेज तवानाई भर जाती है। इन सनसनीखेज लम्हात में हम कुव्वत शामा को आजमा रहे थे, लिहाजा इंतहाई शोर के बावजूद भी हम अपनी लॉन्च पर कूदने वालों की आवाज़ समात कर ली थी। और ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। पता नहीं इन्हें किस शय की तलाश थी। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया। हांगचू और इसके साथियों पर बड़ा कड़ा वक्त आन पड़ा। डॉक्टर मोंग ने भी महसूस कर लिया कि हांगचू वगैरह से सख्त इस्तफसार किया था। अगले ही लम्हे एक दर्दनाक चींग हवा के दोष पर सफर करते हुए हम तक पहुंची। मैंने इस आवाज को आन वाहिद में शनाख्त कर लिया। वो मेरे मेजबान, कदरदां और मेरे मेहरबान हांगचू की अजियत में डूबी हुई फरियाद थी। यकीनी तौर पर इसे जोदो कोप किया जा रहा था। मेरी निगाह में वो मंजर घूम गया जब कुछ अरसा पहले साहिल यानी कि धनो के साथ वो नील कुंड वाली इबादतगाह के तहखाने में रुपोश था और मेरी तलाश में सरगिर्दान नागपल के पालतू गुंडों ने भीड़ जानी और थोंची को अपने जुल्म का निशाना बनाया था। साहिल के वालिदैन ने मेरे दुश्मनों का जुबर सहा लेकिन मेरे खिलाफ जुबान न खोली। मेरे दिल से एक सदा उठी, पता नहीं ये मेरी छुट्टी का हंस की पुकार थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस लॉन्च पर मेरे खून के प्यासों ने धारा बोल दिया हो और मुझे पाने के लिए वो हांगचू को दर्दनाक अजाब से गुजारना चाहते हो। ये नहीं हो सकता, मैंने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा और हर एहतियात को बलाए ताक रखकर एक झटके से इस पनाहगाह को खैराबाद कह दिया। जल्द ही मैं इस मुकाम पर पहुंच गया जहां हांगचू और इसके दोनों साथी दूसरे लॉन्च वालों के नरके में ज्यादती के बर्दाश्त कर रहे थे। वो कुल 3 अफराद थे और तीनों ही मुसल्लहा। इनके हाथों में मुझे ऑटोमेटिक गन्स दिखाई दी। मेरी अचानक आमद ने हमला आवरों को चुकने पर मजबूर कर दिया। वो बड़ी सरत से पलटे भर इनकी निगाहों में शनासाई की चमक उभरी। उन्होंने मुझे अपने गन्स को मेरी जानिब सीधा किया लेकिन मैंने इन्हें कोई मौका नहीं दिया। मैंने अपनी जगह से जंप की और लॉन्च से 6 फुट में बुलंद हो गया। इसी लम्हे इनके गन्स के दहाने खुल गए। इन्होंने बेदरेक मुझे फायरिंग में भूनने की कोशिश की थी लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहता तो इनकी गोलियों का निशाना बनता। दर खाली जाते देखकर इन्होंने गन्स बैरल्स में हवा उठा दिए मगर इन्हें दूसरी मरतबा ट्रेलर्स दिहाने की मोहलत न थी। मैं हवा में बॉडी को रोल करते हुए इनके ऊपर आन गिरा था। मेरा गिरना ऐसा ही था जैसे वो जंगी जहाज में से गिराए गए किसी मोहलक बम की जद में आ गए हों। वो तीनों अपने गन समेत एक दूसरे से उलझकर जमीन बोस हो गए यानी लॉन्च के फर्श से जा गिरे। फिर मैंने इन्हें आरे हाथों लिया। फर्श नशीन होते हुए एक लम्हा आवर के हाथ से गन छूटकर दूर जा गिरी थी। इसे निहत्ता देखकर तो होंगचोंग, योंगली, चीफॉन ने अपनी हजीमत का बदला सोदोस चुकाना शुरू कर दिया। वो तीनों भूखे चीतों की मानी इस पर टूट पड़े थे। दोनों गन बरादर उठकर खड़े हुए तो मैंने हवा में उछलकर एक डबल साइड फ्लाइंग किक जड़ दी। मेरे 2 पाँव ने फर्दर इनके चेहरों का मिजाज पूछा। वो साइडर्स में उल्ट गए। हांगचू की लॉन्च में इंतहाई गुंजाइश थी कि वहाँ किसी रंग फाइट का एहतमाम हो सके। मेरे लिए इतना जगह बहुत काफी थी। मेरी खुश दिली से अपने काम में मसरूफ हो गया। मेरे जहन में वो लम्हा नक्श होकर रह गया जब मुझ पर नजर पड़ते ही हमल आवरों की निगाहों में शनासाई चमकी थी। इसका वाज़ा मतलब यही था कि वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मेरी ही तलाश में लॉन्च तक पहुंचे हैं। इनका अंदाजा खुले दुश्मनों जैसा था। इस वक्त डिसलवा के भेस में था। गोया वो वजदान के नहीं बल्कि डिसलवा के दुश्मन थे। इस जजीरे में वजदान या डिसलवा के किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं थी। इन 3 हमला आवरों की ताज़ा तरीन दुश्मनी सिर्फ एक ही जानब इशारा करती थी कि हो या ना हो इनका ताल्लुक हाईजैकर से हो सकता था। हमारे तैयारी को अगवा करने वाले अगर जोनारा आइलैंड पर उतरे थे तो ये बात यकीनी थी कि यहाँ के इनके साथी इनके हमायती जरूर मौजूद होंगे। हमने अगवा कुंदगान का मंसूबा सुपुर्द खा कर दिया था। इनके हमायतों की बरहमी समझ में आने वाली बात थी। ज्यादा इम्कानात इसी बात के थे कि हमला आवर हाईजैकर्स हो सकते हैं। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे होंगे। ऐसे हंगामी हालात में मेरी खोपड़ी में जहन नामी ये मशीन किस हसास कंप्यूटर से भी ज्यादा फॉल हो जाती थी और हाथ पांव एक नदीदा जलाल के इशारों पर हरकत करने लगते थे। मेरे डबल साइड फ्लाइंग खाने वाले उल्टने के बाद उठे। इस दौरान में अचकर एक नजदीक पहुंच चुका था। वो जैसे ही सीधा हुआ मैंने इसकी ठोड़ी पर एक सलांट किक मार दी। वो एक स्टेप पीछे सरका। मैंने हवा में उछलकर इसके सीने पर एक फ्रंट पुश किक रसीद की। मेरा टारगेट इसका मुकाम कल्ब था। इसके हलक से ओह से मुशाबा एक बेमायनी आवाज खारिज हुई और वो गन समेत पीछे उलट गया। इसके दोबारा उठने के इम्कानात 0 से ज्यादा नहीं थे।
اس دوران میں دوسرے حملہ آور کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ جب تک وہ سنبھل کر اپنی گن کو سیدھا کرتا میں اس کے ساتھی کو نپٹا چکا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آئی کہ وہ فائرنگ کرنے کی بجائے اپنی گن کو لاٹھی کی طرح ہوا میں لہراتے ہوئے میری جانب دوڑا۔ فوری طور پر میری بات سمجھ میں آئی کہ اس کی آٹومیٹک گن میں راؤنڈ باقی نہیں بچے تھے۔ وہ اپنا اکاؤنٹ صاف کر چکا تھا۔ اس کا انداز اللہ دے اور بندہ لے والا تھا۔ میں کشاں آگے بڑھا اور اسی لمحے مجھے حملہ آور کے حکم میں ڈاکٹر مونگری فوشک کی جھلک دکھائی دی۔ وہ ایک چوبی ستون سے ٹیک لگائے بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے حکم میں کچھ فاصلے پر راکیل بھی یہ تماشا ملاحظہ کر رہی تھی۔ گن برادر نے مجھے غافل سمجھ کر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کلہاڑی کے وار کی طرح اپنی گن میری کھوپڑی پر برسانا چاہی۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کا جائزہ لیتے ہوئے حملہ آور کے حرکات سکنات کو اپنے دفوں میں ٹیون کر رکھا تھا، لہٰذا اسے اپنی خوش فہمی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ اس نے جیسے ہی میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، میں نے بڑی سرعت سے فرنٹ فٹ پر حرکت دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دونوں ہاتھوں کو سر سے بلند کرتے ہوئے سیزرز ہینڈ ڈیفنس کی ٹیکنیک کو آزمایا۔ ایپیسوڈ 10 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 11 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔